Dear students, in this video lecture I am going to discuss ABCD parameters of transmission lines and its importance in transmission lines. Then I will discuss some numerical questions on short transmission lines as well as on ABCD parameters of transmission lines. So let us see what is ABCD parameters of transmission lines. So if you revise the concept of network theory, so ABCD parameters, this is also called transmission parameters, ABCD parameters, or these are also called transmission parameters. So what is ABCD parameters? We write VS IS, it is equal to A, B, C, D and VR IR. And this is a transmission line. This is the sending in voltage Vs. This is receiving in voltage VR. This current is sending in current Is, receiving in current IR. So here I am not putting negative sign because here the direction is going outward. So that's why I am not taking negative sign with IR. So from here when we write the equation, it will be Vs equal to AVR plus BIR. Similarly, Is will be equal to CVR plus DIR. So this is equation 1 and equation 2. Now what is the importance of ABCD parameters? Instead of writing impedance, inductance, resistance, everything, if you are representing a transmission lines, that means if you are giving the values of A, B and C and D, then the whole characteristic of the transmission lines are there hidden in this ABCD parameters. Let us see how. Here we see that. Now let us make IR equal to 0. So if IR is equal to 0, then what will happen? If IR is equal to 0, then you will see Vs is equal to A VR, or from here you can write VR equal to Vs by A. From here you can write VR equal to Vs by A. What does it mean? It means if receiving end voltage is known to you and you have to find the open circuit, that means if you have to find the open circuit voltage, so open circuit receiving end voltage, how can you find? Here you see that we have put IR equal to 0, that means transmission line is open circuited. Here the transmission line is open. So if the transmission line is open, then it means no load condition, it means we have to find the no load voltage. So to find no load voltage, what you are doing, you get VR equal to Vs divided by A. VR is equal to Vs divided by A. इसका मतलब हमें सेंडिंग इन वोल्टेज पता था, और जब हम IR इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से VR इक्वल टू Vs by A का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर अभी ओपन सर्किट कंडीशन में जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज हमें Vs by A मिल रहा है. तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरा कैलकुलेट करें IS और VR के बीच में रिलेशन. तो देखिए यहाँ पर IS और VR के बीच में भी रिलेशन मिल रहा है. IR is equal to 0, so IS is equal to CVR. That means if either the receiving in voltage is given to you or even if the sending in current is known to you, then you can easily find one of them. That means C should be known to you. Similarly, when VR is equal to 0, what does it mean? VR is equal to 0. It means the receiving end of transmission line is short circuited with the help of a wire. So when the receiving end of the transmission line is short circuited, in that case you write Vs is equal to BIR and Is is equal to DIR. Is equal to DIR. So from here you can see B is equal to Vs divided by IR and D is equal to Is divided by IR. So for any line, either it is long, short, long or medium transmission lines, everywhere ABCD parameters are there for a transmission line to find the characteristic of transmission line. That means characteristic and performance of transmission lines. Clear? Now let us, you have to find the voltage regulation. If ABCD parameter is given, ABCD parameters are given, ABCD parameters दिया हुआ है, तो यहां से अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, you have to find voltage regulation. So what is the formula for voltage regulation? Voltage regulation is nothing but equal to VR
नो लोड माइनस वी आर फुल लोड डिवाइडेड बाय वी आर फुल लोड. वी आर नो लोड माइनस वी आर full load divided by VR full load. So now what is no load voltage? First, the full load voltage is nothing but receiving in voltage. VR is the full load voltage. This is your full load voltage. Now we have to find no load voltage. So what is no load voltage? No load voltage means IR should be open. When IR is open, then the value of VR, or you can say it VR dash. So this will be equal to Vs divided by A. यहाँ पर जब आप IR को ओपन करेंगे, जब IR will be equal to 0, उस समय जो हमारा वोल्टेज का रिलेशन मिल रहा है Vs is equal to A into VR. तो फ्रॉम हियर जो VR आप लिख रहे हैं VR will be Vs divided by A. So that will be the value of no load voltage. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Vs divided by A minus VR divided by VR into 100. This is the formula of percentage voltage regulation for any transmission line. तो अगर हमें ABCD पैरामीटर दिया हुआ है तो सिर्फ अगर हम A की वैल्यू दी गई है तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा. तो यहां से कभी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. तो अभी हम लोग अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट एबीसीडी पैरामीटर्स. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है. ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज जनरेटर सप्लाइज एन इंडक्टिव लोड ऑफ 5000 किलोवाट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.707 लैगिंग by means of a 200 kilometer, by means of a, here it will be 20 kilometer, by means of a 20 kilometer long overhead transmission line. Line resistance and inductance are 0.0195 ohm and 0.67 millihenry per kilometer. The voltage at receiving end is required to be kept constant at 10 kilovolt. You have to find first the sending in voltage and percentage regulation. Then they are asking you in the second part the value of capacitors placed in parallel with the load such that the regulation is reduced to 50% of that obtained in part A. And in the third question they are asking you to compare the transmission efficiency in case A and case B. तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को. तो देखिए यहां पर हमारा क्या कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन पर. लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. तो जब हम सॉल्यूशन पर आएंगे तो हम देख रहे हैं यहां पर कि दिया गया क्या क्या डेटा दिया गया, उस डेटा को एक बार हम लोग लिखते हैं. डेटा दिया गया है कि यहां पर सिंगल फेज लाइन है. सबसे पहले जो दिया गया है सिंगल फेज लाइन है. यहां पर दिया गया आगे इंडक्टिव लोड लगा हुआ रिसीविंग एंड पर. लोड की वैल्यू क्या है? लोड इज इक्वल टू 5000 kilowatt at 0.707 lagging power factor, at 0.707 lagging power factor by means of a 20 kilometer long overhead line. यानी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दी गई है 20 किलोमीटर. लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 0. जो लाइन रेजिस्टेंस दिया गया है ये रेजिस्टेंस है 0.0195 ओम पर किलोमीटर और इंडक्टेंस दिया गया है 0.67 मिली हेनरी पर किलोमीटर. यहां पर ये इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है. तो आगे दिया गया है द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट कांस्टेंट एट 10 किलोवोल्ट. यानी रिसीविंग इन वोल्टेज हमें दिया हुआ है 10 किलोवोल्ट. अब हमें सेंडिंग इन वोल्टेज पता करना है. तो हम लोग कैसे पता करेंगे? देखिए यहां पर सेंडिंग इन वोल्टेज पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहला दिया गया है L इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर का मतलब आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. तो जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? सेंडिंग इन करंट एंड
रिसीविंग इन करंट विल बी इक्वल, दैट मींस IS विल बी इक्वल टू IR। तो यहां पर हम देखिए कि VR दिया गया है 10 किलो वोल्ट, तो यहां से देखिए अगर हम करंट को कैलकुलेट करें तो करंट क्या होगा, देखिए लोड दिया गया है 5000 किलोवाट, रिसीविंग एंड पर एक लोड कनेक्ट किया गया है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, यहां पर एक लोड कनेक्ट किया गया है, ये हमारा लोड, इसका पावर कंज्यूम दिया गया 5000 किलोवाट एट 0.707 पावर फैक्टर। तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू वहां पर रिसीविंग एंड पर देखें सो इट विल बी इक्वल टू VR IR cos फाई। ये सिंगल फेज है इसलिए लिख रहा हूं, अगर 3 फेज रहता तो √3 VR IR cos फाई होता। फ्रॉम हियर अगर IR आप कैलकुलेट करें सो इट विल बी P डिवाइडेड बाय VR cos फाई। तो पावर इज इक्वल टू 5000 किलोवाट दिया गया है, इट इज इक्वल टू 5000 किलोवाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज 10 किलो वोल्ट इंटू पावर फैक्टर इज 0.707, तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो हमें IR की वैल्यू मिल रही है यू विल गेट IR इज इक्वल टू 707 एम्पियर, IR इज इक्वल टू 707 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दिया गया है, R पर किलोमीटर दिया गया है, L भी पर किलोमीटर दिया गया है, तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस लिखें फाइनली तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट 0.0195 इंटू 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर हम L को लिखें L विल बी इक्वल टू 0.67 मिली हेनरी इंटू 20, तो यहां से अगर हम R की वैल्यू लिखें so R विल बी इक्वल टू 0.39 ओम एंड L विल बी इक्वल टू 12.6 मिली हेनरी। जब हमें इंडक्टेंस पता हो गया तो रिएक्टेंस क्या होगा ओमेगा इंटू L, दैट मींस 2πf इंटू L, so 314.14 इंटू L, so from here the value of X will be 3.96 ohm, the value of X will be 3.96 ohm. So now let us write the formula for sending in voltage. First we have to find sending in voltage. तो sending in voltage का अगर हम फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला हमें क्या मिला था सेंडिंग इन वोल्टेज का, सेंडिंग इन वोल्टेज का फॉर्मूला मिला था VR प्लस IR cos फाई R प्लस IX sin फाई R। और यहां पर देखिए मैं वेक्टर टर्म नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड देखिए यहां पर VS को अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 किलो वोल्ट है यहां पर, या फिर इसे 10,000 लिख देते हैं क्योंकि आगे हमारा करंट क्या है किलो एम्पियर में नहीं है बल्कि एम्पियर में है, प्लस 707 करंट को कॉमन ले लेते हैं R cos फाई R, R की वैल्यू है 0.39 इंटू cos फाई R की वैल्यू है 0.707 प्लस X sin फाई I ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, X इज इक्वल टू 3.96 इंटू sin फाई, तो cos फाई की वैल्यू 0.707 है, sin फाई भी क्या होगा, इट मींस फाई इक्वल टू 45 डिग्री, और लैगिंग दिया हुआ है इसलिए sin फाई भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, सो sin फाई विल बी इक्वल टू 0.707। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो फ्रॉम हियर यू गेट सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू 12.174 किलो वोल्ट, सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू 12.174 किलो वोल्ट। सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज रेगुलेशन। तो परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट लाइन में VS माइनस VR डिवाइडेड बाय VR। सो फ्रॉम हियर यू राइट 12.174 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 21.74%। फ्रॉम हियर द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 21.74%। क्लियर। अब नेक्स्ट कम टू पार्ट बी। तो पार्ट बी में देखिए क्या दिया गया है, पार्ट बी में दिया गया है इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ क्या किया जा रहा है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा रहा है रिसीविंग एंड पर, यहां पर एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा रहा है रिसीविंग एंड पर, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर प्लेस्ड इन पैरेलल विद द लोड एट रिसीविंग एंड। तो देखिए ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन और यहां पर ये लोड था ट्रांसमिशन लाइन का, ये लोड था ट्रांसमिशन लाइन का। अब इसके साथ एक कैपेसिटर को यहां पर पैरेलली प्लेस कर दिया जा रहा है, तो जब इस कैपेसिटर को प्लेस करेंगे तो ये रिसीविंग इन वोल्टेज है, यहां से रिसीविंग इन करंट IR जा रहा था, ये करंट अब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये यहां पर है हमारा I लोड, दिस इज I लोड और दिस इज IC, दिस इज I लोड एंड दिस इज IC।
तो ये करंट जो हमारा यहाँ पर मिला है, या फिर इसे आई करंट बोल सकते हैं, ये हमारा आई करंट था और ये आई आर रिसीविंग इन करंट है। दिस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है कि रेगुलेशन इज रिड्यूस टू 50% ऑफ दैट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए। यहां पर बतला रहा है कि रेगुलेशन इज रिड्यूस टू 50% ऑफ दैट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए में जितना रेगुलेशन आया था इस रेगुलेशन का 50% पर रिड्यूस हो चुका है सेकेंड पार्ट में रेगुलेशन। तो जो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा हमारा, ये देखिए बी में, तो नया रेगुलेशन है यहाँ पर क्या होगा, ये परसेंटेज रेगुलेशन होगा 21.74% डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमें जो मिल रहा है परसेंटेज रेगुलेशन, ये परसेंटेज रेगुलेशन हमें मिल रहा है 10.875%। और हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज 10 किलो वोल्ट पर फिक्स है। इसका मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज चेंज होगा, तो परसेंटेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू वीएस डैश माइनस वीआर डिवाइडेड बाय वीआर। तो वीआर इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट। तो यहां से हम लोग अगर कैलकुलेट करें फ्रॉम हियर जो नया सेंडिंग इन वोल्टेज आएगा वीएस डैश इट विल बी इक्वल टू 11.0875 किलो वोल्ट। दिस इज द वीएस डैश 11.0875 किलो वोल्ट। अब हमें दूसरा जो दिया गया है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पर कि नया कैपेसिटर का रिक्वायर्ड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर ये लोड था, इस लोड का अपना एक पावर फैक्टर रहा होगा। अब इस लोड के साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है, तो जो कंबाइंड पावर फैक्टर यहां पर होगा, दिस कंबाइंड फैक्टर पावर फैक्टर हैज नाउ बीन चेंज। तो हम लोग मान लेते हैं जो नया पावर फैक्टर है ये cos phi r डैश है, और हमें नहीं पता ये नेक्स्ट पावर फैक्टर जो नया आया है ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हम बतला सकते हैं कि ये लैगिंग पावर फैक्टर है या फिर ये लीडिंग पावर फैक्टर है। तो यहां पर देखिए जब हम लोग यहां पर लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग वही उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला जब हम लिखेंगे वीएस डैश का, तो वीएस डैश विल बी इक्वल टू वीआर प्लस, यहां पर देखिए जो नया रिसीविंग इन करंट होगा, ये रिसीविंग इन करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आई आर डैश में। So it will be IR dash into R cos phi R dash, R cos phi R dash plus X sin phi R dash, X sin phi R dash। हम लोग यहाँ पर लीडिंग या लैगिंग पता नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा है। लास्ट में अगर phi R हमें निगेटिव आता है तो हम समझ जाएंगे जब कि वहां से लैगिंग या लीडिंग जो भी है। तो यहां पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहां पर VS की वैल्यू पता है, VR की वैल्यू पता है। तो यहां से जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन देखिए क्या आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट IR डैश इज इक्वल टू IR डैश इंटू 0.39 cos phi R डैश प्लस 3.96 sin phi R डैश, it will be equal to 1087.5। दिस इज इक्वेशन 1। और जो दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे, अब देखिए यहां पर क्या है, IR डैश और cos phi R डैश दो वेरिएबल्स हैं, हमें फाइंड करना है IR डैश और cos phi R डैश की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि लोड हमारा वही है 5000 किलोवाट का, तो IR को अगर हम लिखें IR डैश, तो दैट विल बी लोड 5000 किलोवाट डिवाइडेड बाय 10 किलो वोल्ट जो वोल्टेज दिया गया है इंटू नया पावर फैक्टर cos phi R डैश, cos phi R डैश, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि IR डैश इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय cos phi R डैश। अब जब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहां से IR के जगह लिखेंगे IR, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर IR डैश के जगह लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय cos phi R डैश। तो यहां से आपको मिलेगा IR डैश, फ्रॉम हियर यू विल गेट IR डैश इज इक्वल टू 548.45 एम्पियर। IR डैश इज इक्वल टू 548.45 एम्पियर, और cos phi R डैश जो हमें मिल रहा है, cos phi R डैश इट इज इक्वल टू
फ्रॉम हियर cos phi r dash इज इक्वल टू 0.912 लैगिंग मिल रहा है, 0.912 लैगिंग मिल रहा है, ये हमारा cos phi r dash है। तो I r dash और cos phi r dash हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, क्योंकि जब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जो करंट की, अगर हम करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर जान जाएंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज हमें VR दिया गया है 10 किलोवोल्ट, तो फिर हम लिख सकते हैं रिएक्टेंस IC विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय XC, वहां से हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहां से अगर हम कैपेसिटर करंट को देखें तो ये करंट क्या होगा, यहां से IR डैश करंट जा रहा है, इन कर रहा है, इस IR डैश करंट में करंट I माइनस होगा तो वो होगा IC। सो वी कैन राइट IR डैश इज इक्वल टू IC डैश, हियर इट विल बी IC विल बी इक्वल टू IR डैश माइनस I, IC इज इक्वल टू IR डैश माइनस I। और यहां पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए वेक्टर के टर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे करंट्स का अपना अलग अलग एंगल है। तो देखते हैं सारे एंगल्स क्या क्या हैं। अगर हम यहां पर IC लिखें तो IC विल बी इक्वल टू IR डैश, तो IR डैश क्या है यहां पर, तो IR डैश हमारा है, जो IR डैश में यहां पर आया है ये है हमारा 548.45 एम्पियर, 548.45 एट द एंगल। अब यहां पर एंगल लिखना है, एंगल के लिए क्या होगा, एंगल यहां पर phi r डैश हमें कैलकुलेट करना है, तो cos phi r डैश इज इक्वल टू 0.912 लैगिंग है, इसका मतलब जो phi r डैश आ रहा है ये phi r डैश यहां से क्या होगा, cos इनवर्स करेंगे, इट विल बी इक्वल टू -24.26 डिग्री, -24.26 डिग्री मतलब ये इस करंट का एंगल है, तो ये लिख रहे हैं -24.26 डिग्री माइनस करंट I जो हम लोग लिख रहे हैं, करंट I क्या था, करंट I जो हमारा प्रीवियस करंट था वही करंट था 707 एम्पियर एट द एंगल, और पावर फैक्टर दिया हुआ था 0.707 लैगिंग यानी -45 डिग्री। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हियर यू गेट IC इज इक्वल टू 274.58 एट द एंगल अप्रोक्सीमेटली प्लस 90 डिग्री आ रहा है। तो आना भी चाहिए, जो कैपेसिटर करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीड करेगा। तो IC इज इक्वल टू 274.58, तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से चलते हैं, IC को क्या लिखेंगे, VR डिवाइडेड बाय XC, दैट मींस 10 into किलोवोल्ट, दैट मींस 1000 डिवाइडेड बाय XC। तो फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट XC, so XC will be equal to, from here XC is coming VR divided by IC की वैल्यू पता है, XC मिलेगा 36.42, और ये XC क्या होगा, ये होगा 1 by ओमेगा C, ओमेगा क्या है 314.14 इज वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहां से अगर हमें C की वैल्यू लिखें, यू आर गेटिंग C इज इक्वल टू 87.34 microfarad. From here the value of C is equal to 87.34 microfarad. C is equal to 87.34 microfarad. So this is the value of capacitor which is required to reduce the regulation to 50% of the previous value. Next जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है एफिशिएंसी पता करना है, एफिशिएंसी इन पार्ट A एंड B। तो एफिशिएंसी पता करना बहुत आसान है। एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए सिंपली हमारे पास रिसीविंग एंड करंट पता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें पता है, तो जो करंट हम पता करेंगे, जो पावर लॉस होगा वो पावर लॉस क्या होगा, VR इंटू IR कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से पावर डिलीवर पता चल जाएगा। जो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से एफिशिएंसी पहला पार्ट में आएगा ईटा A, अगर फर्स्ट पार्ट में आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करें दैट एफिशिएंसी विल बी 96.2% आ रहा है, और दूसरा पार्ट में एफिशिएंसी आ रहा है ईटा B, इट इज इक्वल टू 97.7%। ये दो एफिशिएंसी हमें मिल रहा है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पर आ रहे हैं, यहां से हम लोग एक कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जब हमने कैपेसिटर को ऐड किया, व्हेन
आई हैव एडेड ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव किया, इंप्रूव यानी वैल्यू डिक्रीज किया 50%, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव किया, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का कम वैल्यू डिजायर्ड होता है। और दूसरा एफिशिएंसी इंप्रूव किया, इसका मतलब कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलल में ऐड करेंगे बाय एडिशन ऑफ ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, parallel with the load at receiving end, improves performance of ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपेसिटर को यूज करना ट्रांसमिशन लाइन में एक अच्छी बात होती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। इस बार एक ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम लिया गया है, वो भी सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है। दरअसल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए पहले सिंगल फेज सिस्टम को डिस्कस किया जा रहा है, फिर जाकर थ्री फेज सिस्टम्स डिस्कस किए जाएंगे। तो एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है और इस सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि जनरेटर भी लगे हुए हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्ट किया गया है, कुछ ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्ट किया गया है। ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन टू यू। एक ट्रांसफॉर्मर है, अगेन देयर इज अनदर ट्रांसफॉर्मर, आफ्टर दैट इट इज ए लोड 250 किलोवोल्ट एम्पियर, 2 किलोवोल्ट, 0.8 पावर फैक्टर लैग। ये लोड कनेक्ट किया गया है और यहां पर जो वोल्टेज दिया गया है ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेशियो दिया गया है 2 किलोवोल्ट इज टू 11 किलोवोल्ट, ये वोल्टेज है। और यहां पर दिया गया है 11 किलोवोल्ट इज टू 2 किलोवोल्ट। ये ट्रांसमिशन लाइन है 10 प्लस J30 ओम, 10 प्लस J30 ओम का एक इंपीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का। ये यहां पर जनरेटर है और ये दिया गया है, दिस इज द सिंगल फेज सिस्टम। ये एक सिंगल फेज सिस्टम दिया गया है। यहां पर आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्मर का रेजिस्टेंस, दोनों ट्रांसफॉर्मर की बात की गई है, दोनों ट्रांसफॉर्मर एक जैसा है। रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो दिया गया है एलवी साइड में दिया गया है, एलवी साइड में रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर दिया गया है 0.04 ओम, एचवी साइड में रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर दिया गया है 1.3 ओम, एचवी साइड में रेजिस्टेंस है 1.3 ओम। सिमिलरली जो रिएक्टेंस दिया गया है, रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी एलवी साइड और एचवी साइड में अलग अलग दिया गया है, एलवी साइड और दूसरा एचवी साइड। तो एलवी साइड में रिएक्टेंस दिया गया है 0.125 ओम और एचवी साइड में रिएक्टेंस दिया गया है 4.5 ओम, एचवी साइड में रिएक्टेंस दिया गया है 4.5 ओम। तो आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन वोल्टेज एट जनरेटिंग स्टेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वोल्टेज एट द जनरेटिंग स्टेशन यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम दिया गया है। तो हमारा टारगेट होता है कि सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, वो ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज लेवल को चेंज कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि हम लोग एक वोल्टेज लेवल पर सारा कैलकुलेशंस करेंगे। एक वोल्टेज लेवल पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है,
जो आपने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा होगा तो वहां पर देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर का जब इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, या तो हाई वोल्टेज साइड रेफर कर देते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को, या फिर लो वोल्टेज साइड रेफर कर देते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को। हम लोग क्या करते हैं पूरे सिस्टम को, ये देखिए यहाँ 2 किलो वोल्ट का सिस्टम है, ये हमारा 11 किलो वोल्ट का सिस्टम है, ये 2 किलो वोल्ट का सिस्टम है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सारी चीजों को 2 किलो वोल्ट के साइड रेफर करेंगे। 2 किलो वोल्ट के साइड कैसे रेफर किया जाएगा इस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पर 2 किलो वोल्ट साइड रेफर का मतलब क्या है, रेफरिंग टू 2 किलो वोल्ट साइड। तो 2 किलो वोल्ट साइड अगर हम रेफर करें तो देखिए यहाँ पर कैसे किया जाएगा 2 किलो वोल्ट साइड रेफर, यानी कि इसे हम प्राइमरी साइड इस साइड रेफर कर रहे हैं। तो देखिए रेफरिंग टू एलवी साइड। तो ये जो जेड ट्रांसमिशन लाइन दिया गया था, जेड लाइन, तो जेड लाइन अगर यहां पर है 10 प्लस J30 ओम इस साइड है, तो ट्रांसफार्मर के इस साइड इसका क्या होगा, वो वैल्यू इस साइड इसका वैल्यू होगा, जब एलवी साइड में रेफर करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज कम होता है तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस उस साइड कम होता है। तो जेड लाइन क्या हो जाएगा, जेड लाइन विल बी इक्वल टू 10 प्लस J30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर जेड लाइन इज इक्वल टू 0.33 प्लस J 0.99, सो दिस विल बी जेड लाइन। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का जेड हम कैलकुलेट करेंगे, जेड ट्रांसफार्मर। तो जेड ट्रांसफार्मर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जेड ट्रांसफार्मर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर देखिए ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर के केस में यहां पर देखिए जो हमारा पास एलवी साइड है, जो लो वोल्टेज साइड है, यहां पर देखिए लो वोल्टेज साइड में दिया गया है रेजिस्टेंस 0.04 ओम। तो जो हम रेफर कर रहे हैं इसे, तो लो वोल्टेज साइड में क्या होगा 0.04 ओम हो रहा है, यहां पर 0.04 ओम हो रहा है। और हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, और हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस दिया गया है 0.125 ओम। तो हाई वोल्टेज साइड को क्या करना, ये हाई वोल्टेज साइड का 1.3 ओम दिया गया है, यहां पर क्या लिखेंगे प्लस 1.3, और ये जब लो वोल्टेज साइड में आएगा 2/11 होल स्क्वायर। सिमिलरली रिएक्टेंस की बात करें तो यहां पर मैं J का टर्म लिख रहा हूं, एलवी साइड का रिएक्टेंस वही रहेगा, एलवी साइड का रिएक्टेंस 0.125 ओम होगा, और एचवी साइड का रिएक्टेंस क्या होगा 4.5 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर। 4.5 इंटू 2/11 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एलवी साइड में रेफर किया जाता है। तो यहां से जेड ट्रांसफार्मर अगर हम कैलकुलेट करें तो जेड ट्रांसफार्मर यहां पर हमें मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 0.083 प्लस J 0.273 ओम। ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट को अगर हम देखें तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए ये हमारा जनरेटर है, दिस इज द जनरेटर। ये पहला ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। दूसरा ट्रांसमिशन लाइन का बनेगा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। फिर तीसरा ट्रांसफार्मर का बनेगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। और यहां पर ये क्या होगा, एक लोड को कनेक्ट किया गया है, लोड इज कनेक्टेड हियर। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए तो 0.083 प्लस J 0.273 ओम है। यहां पर देखें तो ये वैल्यू है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का 0.33 प्लस J 0.99। सिमिलरली यहां पर इस ट्रांसफार्मर का देखें तो यहां पर भी सेम होगा, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को एलवी साइड में हम लोग रेफर कर रहे हैं। तो एलवी साइड में रेफर करेंगे फिर से वही वैल्यू आएगा 0.083 प्लस J 0.273 ओम आएगा। तो ये रहा हमारा। अब लोड की बात करते हैं। लोड क्या दिया गया है 250 किलो वोल्ट एम्पियर, 2 किलो वोल्ट का ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है हमारा 2 किलो वोल्ट का। तो लोड करंट अगर हम कैलकुलेट करें, लोड करंट, तो लोड करंट I will be equal to nothing but 250 किलो वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय यहां पर 2 किलो वोल्ट। तो यहां से मिल रहा है हमें I is equal to 125 एम्पियर, I is equal to 125 एम्पियर।
तो जब हमें आई 125 एम्पियर मिल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P रिसीव्ड डिवाइडेड बाय P रिसीव्ड प्लस P लॉसेस इनटू 100। तो P रिसीव्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखिए 250 किलो वोल्ट एम्पियर का लोड है और 0.8 पावर फैक्टर लैग है। तो अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इंटू 0.8, सो इट विल बी इक्वल टू 200 किलोवाट डिवाइडेड बाय यहां पर P रिसीविंग 200 किलोवाट है प्लस पावर लॉसेस को देखना है। तो जो हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो लॉस को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, लॉस को अगर हम कैलकुलेट करें तो लॉस के लिए आप लिखेंगे, लॉसेस के लिए अगर आप लिखें तो PL विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो I की वैल्यू है 125 स्क्वायर इंटू आर। तो R यहां पर क्या होगा, इसको प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, क्योंकि लॉस जो होता है लाइन में वो सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है, रिएक्टेंस के कारण नहीं होता है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो फ्रॉम हियर इट इज 0.496। तो ये यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो PL इज इक्वल टू 7.7 किलो वाट आ रहा है। तो 7.7 किलो वाट को यहां पर पुट करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा प्लस 7.7 किलो वाट और यहां से इंटू 100 करेंगे तो फ्रॉम हियर एफिशिएंसी यू आर गेटिंग, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 96.3%। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 96.3%। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सेंडिंग इन वोल्टेज। तो सेंडिंग इन वोल्टेज के लिए फिर क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, Vs इक्वल टू VR प्लस I इंटू R cos phi R प्लस X sin phi R। तो यहां पर सारे वैल्यूज हमें पता है, Vs VR VR I R cos phi R sin phi R सारे वैल्यूज पता है। तो फ्रॉम हियर द आंसर विल बी 2.168 किलो वोल्ट। फ्रॉम हियर द आंसर विल बी 2.168 किलो वोल्ट विल बी द आंसर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि गेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस आस्क्ड इन गेट एग्जाम। तो यहां पर हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन का किस तरह से रेगुलेशन और एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाता है। आपको ट्रांसमिशन लाइन के डायग्राम को समझने की जरूरत है। तो हम लोग यहां पर गेट में पूछा गया क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गेट 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। गेट 2006 में पूछा गया था। इसमें दिया गया है एक 220 किलो वोल्ट लाइन दिया गया है, 220 किलो वोल्ट लाइन दिया गया है, 3 फेज लाइन है। यहां पर दिया गया है A इक्वल टू D इज इक्वल टू 0.94 एट द एंगल 1 डिग्री। दूसरा दिया गया है B इज इक्वल टू 130 एट द एंगल 73 डिग्री और C दिया गया है 0.001 एट द एंगल 90 डिग्री। आपको पूछा जा रहा है कि सेंडिंग इन वोल्टेज आपको दिया गया है। सेंडिंग इन वोल्टेज ऑफ द लाइन फॉर ए गिवन लोड डिलीवर्ड एट नॉमिनल वोल्टेज इज 240 किलो वोल्ट। सेंडिंग इन वोल्टेज आपको दिया गया है 240 किलो वोल्ट। रिसीविंग इन वोल्टेज दिया गया है 220 किलो वोल्ट। जो लिखा हुआ है 220 किलो वोल्ट लाइन, इसका मतलब वो रिसीविंग इन वोल्टेज बतला रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज रेगुलेशन, व्हाट विल बी द परसेंटेज रेगुलेशन। तो जब हम परसेंटेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे सो अगेन इट विल बी VR नो लोड माइनस VR फुल लोड डिवाइडेड बाय VR फुल लोड इनटू 100। तो यहां पर अब हम फुल लोड वोल्टेज को देखें। फुल लोड वोल्टेज क्या है, यही हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज है। सो VR फुल लोड इज इक्वल टू नथिंग बट 220 किलो वोल्ट। अब हम VR नो लोड अगर कैलकुलेट करें तो VR नो लोड क्या होगा, VS डिवाइडेड बाय A। इट विल बी इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय A। तो अगर हम आंसर लिखें परसेंटेज रेगुलेशन का, परसेंटेज रेगुलेशन इट विल बी इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय A।
माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी आर। तो यहां पर क्या होगा Vs बाय ए यानी 240 डिवाइडेड बाय, यहां पर ए की वैल्यू दी गई है 0.94 माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज है 220 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय 220। तो यहां से हमें मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू 16% इज द आंसर। We're getting the answer equal to 16%। ये रहा गेट में पूछा गया क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड इन गेट 2006। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। नया दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इट वाज आस्क्ड इन गेट 2004। गेट 2004। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन गेट की परीक्षा में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक जनरल 220 किलो वोल्ट रेटेड लाइन है, 220 किलो वोल्ट लाइन दिया गया है यहाँ पर, यानी रिसीविंग इन वोल्टेज आपको दिया गया है। मीडियम लेंथ लाइन है लिखा हुआ और यहां पर दिया गया है ए एंड डी इट इज इक्वल टू 0.936 एट द एंगल 76.4 डिग्री और बी और सी की वैल्यू भी दी गई है। बी की वैल्यू दी गई है बी इज इक्वल टू 142.76.4 डिग्री, 142 at the angle 76.4 degree and C is equal to -5.18 plus J 914 into 10 to the power -6 ohm दिया गया है। पूछा कहा जा रहा है इफ लोड एट द रिसीविंग एंड इज 50 मेगावाट एट 220 किलो वोल्ट। लोड दिया गया है रिसीविंग एंड पर 50 मेगावाट 220 किलो वोल्ट वोल्टेज दिया गया जो रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है और 0.9 पीएफ लैग है। पावर फैक्टर है 0.9 पीएफ लैग। आपको पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग इन वोल्टेज इज व्हाट। आपको पूछा क्या जा रहा है सेंडिंग इन वोल्टेज लाइन टू लाइन सेंडिंग इन वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। हमें देखिए लोड पता है, वीआर हमें दिया गया, वीआर इज इक्वल टू 220 किलो वोल्ट। क्लियर। लोड हमें दिया गया है तो जब हमने लोड दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर देखिए एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन होगा। अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया है मतलब ट्रांसमिशन लाइन हमारा थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन ही होगा। तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए कहा गया है। तो यहां पर देखिए लाइन वोल्टेज यानी जो 220 किलो वोल्ट भी दिया गया था ये आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया गया था। तो जब हम आईआर को कैलकुलेट करें तो आईआर इस पावर को लिखते हैं 50 मेगावाट डिवाइडेड बाय √3 इंटू वीआर। तो वीआर की वैल्यू क्या है इंटू 220 किलो वोल्ट इंटू यहां पर पावर फैक्टर को लिखें तो 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर है। यहां पर 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर है। तो यहां से हमें मिल रहा है फ्रॉम हियर आईआर इज इक्वल टू 145.8 एम्पियर, 145.8 एम्पियर। और एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल क्या होगा जो हमारा पावर फैक्टर दिया गया है 0.9 लैग, तो cos इनवर्स फाई करेंगे। cos इनवर्स फाई से 25.84 आ रहा है और ये लैगिंग है तो -25.84 डिग्री है। लैगिंग का मतलब -25.84 डिग्री है। अब देखिए यहां पर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम का हो या फिर आगे इलेक्ट्रिकल मशीन में हो, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो लोड वोल्टेज दिया होता है लोड वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस मानते हैं और वही फेजर में भी हम रेफरेंस मानते हैं। तो वहां पर उसका एंगल 0 डिग्री लिया जाता है। उसके बाद अगर हमें करंट दिया गया उसका लैगिंग करंट है तो लैगिंग करंट का मतलब वो एंगल माइनस में हो जाएगा, इसलिए -25.84 लिखा हूं लैगिंग के लिए एंगल। तो नेक्स्ट अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए आप जानते हैं कि Vs इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, ABCD पैरामीटर से आप ये जान रहे हैं। यहां पर हमें सारा वेक्टर के फॉर्म में लिखना है हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर देखिए ध्यान क्या रखना है कि ये देखिए यहां पर B इंटू IR जो आपको मिलेगा ये फेज वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ये यहां पर फेज वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा ये फेज में लेना पड़ेगा और ये भी यहां पर
फेज में लेना पड़ेगा, ये भी आपको फेज में लेना पड़ेगा। तो फेज का मतलब आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो Vs जो फेज मिलेगा हमें यहाँ से, Vs फेज विल बी इक्वल टू A इंटू VR। तो A की वैल्यू दी गई है 0.936 एट द एंगल 76.4 डिग्री इंटू VR जो दिया गया है, VR क्या होगा 220 डिवाइडेड बाय √3, 220 डिवाइडेड बाय √3 होगा, 220 डिवाइडेड बाय √3, और यहां पर प्लस जो दूसरा टर्म आएगा हमारा, और देखिए ये क्या है किलो वोल्ट में हमने ले लिया, ये हमने किलो वोल्ट में ले लिया। तो यहां पर जो हमारा दूसरा B का टर्म आप लिखेंगे तो B इंटू बी का की भी वैल्यू वही है, B की वैल्यू है 142 एट द एंगल 76.4 डिग्री इंटू जो यहां पर हम IR अब लिखेंगे, इस IR को हमें किलो एम्पियर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक टर्म ऑलरेडी किलो में ले लिया है, दूसरा भी क्या होगा किलो में लेना पड़ेगा, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे करंट 0.1458 एट द एंगल -25.84 डिग्री। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Vs फेज हमारा आएगा 133.25 वोल्ट। Vs फेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इट विल बी 133.25 किलो वोल्ट। और यहां से लाइन वोल्टेज अगर हम लिखें Vs लाइन, इट इज इक्वल टू 230.78 किलो वोल्ट। देन द आंसर विल बी 230.78 किलोवोल्ट। दिस विल बी द आंसर। Vs लाइन वोल्टेज 230.78 किलोवोल्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2003। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2003। गेट 2003 यहां पर देखिए दिया गया है A एंड D, A इक्वल टू D इक्वल टू 0.9 एट द एंगल 0 डिग्री। दूसरा B इज इक्वल टू 240 एट द एंगल 90 डिग्री ओम दिया गया है। C इज इक्वल टू 0.95 एट द इंटू 10 टू द पावर -3 एट द एंगल 90 डिग्री पर ओम दिया गया है। एंड D और A दोनों इक्वल है। अब लिखा गया है एट नो लोड कंडीशन, क्वेश्चन में दिया गया है एट नो लोड कंडीशन। एट नो लोड कंडीशन a shunt inductive reactor is connected at the receiving end of the transmission line. A shunt reactor is connected at the receiving end of the transmission line to limit the receiving in voltage to be equal to sending in voltage. To limit the receiving end voltage to be equal to sending end voltage. Voltage, the ohmic value of reactor is, the ohmic value of reactor is, यहां से ohmic value of the reactor पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन है और यहां पर दिया गया है कि एक रिएक्टर को कनेक्ट किया गया है, एक रिएक्टर को नो लोड कंडीशन में कनेक्ट किया गया है। और ये रिएक्टर क्या कर रहा है, ये रिएक्टर कुछ इस तरह से अपना रिएक्टिव पावर दे रहा है कि जो रिसीविंग इन वोल्टेज है और जो सेंडिंग इन वोल्टेज है दोनों बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया गया Vs इज इक्वल टू VR।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस रिएक्टर के रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है, यहां से आपको इसका रिएक्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहां पर लिखेंगे, आप जानते हैं कि Vs इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, Vs इज इक्वल टू ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर। तो हम लोग यहां पर देखें तो Vs को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वी एस प्लस बी इंटू आई आर। तो यहां से अगर हम देखें तो आई आर को क्या लिखेंगे, Vs इंटू 1 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी इंटू आई आर। फ्रॉम हियर आई आर इज नथिंग बट आई आर इज इक्वल टू Vs इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। Vs इज इक्वल टू आई आर इक्वल टू Vs इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। Vs इज इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? और यहां पर जो b की वैल्यू दी गई है, दिस b इज not 240, it is 200, it is 200, the value of b is given as 200। तो अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, तो Vs इंटू 1 माइनस ए बाय बी मिल गया, ये हमारा IR होगा। तो Vs और VR दोनों इक्वल है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि IR इज इक्वल टू VR इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। VR इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय V। अब देखिए यहां पर x को अगर हम कैलकुलेट करें, ये करंट IR इसमें एंटर कर रहा है, तो x क्या होगा, x विल बी नथिंग, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें x विल बी VR डिवाइडेड बाय IR, x भी होगा VR डिवाइडेड बाय IR। तो यहां से देखिए अगर VR डिवाइडेड बाय IR हमें कैलकुलेट करना पड़े, VR डिवाइडेड बाय IR, तो VR बाय IR क्या होगा इस इक्वेशन से, VR अपॉन IR, इट विल बी नथिंग बट B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A। It will be equal to b divided by 1 minus a। तो b की वैल्यू क्या है, b is equal to 200 at the angle 90 degree divided by a is 1 minus 0.9। तो यहां से क्या होगा, j 2000, j 2000। इसका मतलब जो रिएक्टेंस, जो रिएक्टर की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2000 ohm should be the ohmic value of the reactor। 2000 ohm should be the ohmic value of the reactor। So this is the solution of this question that was asked in GATE 2003। So you can see that many more questions are asked from performance of transmission lines in GATE examination, and the questions are very easy। In the similar way, the questions will be asked in your semester examinations also. There they will give some numerical questions which I discussed earlier for single phase transmission line। Similarly, they can give you the numerical question for थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन आप पर फेज बेसिस पर कर लेंगे, और लास्ट में उसे फिर थ्री फेज के लिए आप लाइन वोल्टेज को, फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट line voltage। So this is all about short transmission line।